Hello everyone, welcome to the first video of the A-level stream, and today we are going to talk about atomic structure. This video is based on the assumption that you are already pretty familiar with the topic of atomic structure as far as O-levels concepts are concerned. But if you need a bit of a revision, I'm also attaching the link of the video of my O-levels lecture. So let's rock and roll with A-levels. So we already know a few things about atoms, and the first thing is it's the smallest particle. It contains 3 subatomic particles. It has protons, neutrons, and electrons. और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस होते हैं. प्रोटॉन हैज अ +1 charge, neutron has a 0 charge, and electron has a -1 charge. As far as the masses are concerned, protons and neutrons contribute to the masses of an atom, but electron का negligible mass होता है, that is equal to 1/1840. इसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट आइसोटोप्स एंड आयंस इन ओ लेवल्स. जब न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं एटम्स में तो आइसोटोप्स बनते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं एक एटम्स में तो आयंस बनते हैं. So let's do some recap questions. So we have a carbon, we have a particle of carbon. Carbon का proton number होता है 6. So it has 6 protons. It has a -2 charge, so it will have 8 electrons. Then neutrons you can calculate by subtracting 6 from 14. That would be 8. And you need to complete the following table with the names and properties of the types of particles. So if a particle has a relative charge of 0, it means that it is proton, which has a mass of 1. And relative charge of 0, then it will be a neutron, sorry, not proton. And if a particle has a mass of 1/1836, and that is going to be obviously electron, right? And it has a charge of -1. Only one particle is left, and that is proton. And that has a mass of 1 and has a charge of +1. Okay, so here I feel that you need to get a refresher on the relative atomic mass. You need to understand that almost all elements have atoms, right? All elements have atoms, लेकिन हर एलिमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि डिफरेंट आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, और वो सब आइसोटोप्स की अमाउंट डिफरेंट है. यानी कि लेट से अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन 12 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन 13 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और कार्बन 14 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. ये तीनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं, लेकिन ये तीनों जो हैं डिफरेंट अमाउंट्स में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में. कार्बन 99.9% जो है वो कार्बन 12 एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है, लेकिन हमें इन सब के मैसेज को केटर करना पड़ता है. इसी तरह से क्लोरीन जो है हमारे पास, क्लोरीन 35 भी होता है और क्लोरीन 37 भी होता है. बेसिकली क्या चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं दोनों में, ठीक है. बट इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का, वो होता है 35.5, ठीक है, जो कि इनका सेंटर नहीं है. लेकिन केटर हमने दोनों को किया हुआ, किस बेसिस पे, हमने उनकी ये देखा हुआ कि नेचर में कितनी अमाउंट में वो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम अबंडेंस कहते हैं. लेट्स से 35 वाले की अबंडेंस 25% है, और 37 वाले की अबंडेंस 75% है. तो वी हैव केटेड बोथ ऑफ देम एंड वी कैलकुलेटेड देयर वेटेड एवरेजेस. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे लेते हैं? वी कैलकुलेट वेटेड एवरेजेस ऑफ द आइसोटोपिक masses. ये जो masses हैं, यानी कि क्लोरीन 35 इसका आइसोटोप मास है, और क्लोरीन 37 इसका आइसोटोपिक मास है. तो हाउ डू वी कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास? वी मल्टीप्लाई 35 by its abundance and 37 by its abundance, and then you add them together, you get 35.5. We'll do the calculation in the later slide. So like I told you, आइसोटोपिक मास क्या होता है? क्लोरीन 35 का 35 है, 37 का 37 है. दैट्स द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन आइसोटोप कंपेयर्ड टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. ये कंपैरिजन तो हम ओ लेवल से करते आ रहे हैं. वी जस्ट कंपेयर इट टू द कार्बन 12 एटम व्हिच इज अ स्टैंडर्ड. So we are given the relative isotopic masses of both the isotopes of chlorine and the abundance. अब हमने निकालने हैं relative atomic mass. हमने ये O levels में भी किया. Let's do it again. So to calculate relative atomic mass or AR, we'll have to multiply the isotopic mass with its abundance. So 35 multiply by 75, और परसेंटेज को खत्म करेंगे तो वो 100 हो जाएगा. 100 से डिवाइड करना होगा हमें बेसिकली. प्लस 37 into इसकी abundance 25, and just divide the whole thing by 100 to remove the percentage sign. ठीक है, and you will get 35.5 will be your answer,
जो कि क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का। सो कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड द फर्स्ट वन इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो इतना डिफरेंस नहीं है, वही जो एटॉमिक मास होता है वही रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है। डिफरेंस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मॉलिक्यूल, हम एक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन जिससे एटॉमिक मास की होती है, इट्स द वेटेड मास ऑफ वन एटम कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसमें एटम की जगह जस्ट मॉलिक्यूल लिख देते हैं आप। इट्स द एवरेज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। और जहां तक फॉर्मूला मैथ की बात है, तो ये मॉलिक्यूलर मैथ ही होता है जिस आयोनिक कंपाउंड्स का होता है। यानी कि अगर आप NaCl का मॉलिक्यूलर मैथ निकालो जो कि होता है 58.5, तो आप ये भी कह सकते हो ये उसका फॉर्मूला मैथ है। Okay, now we are going to talk very briefly about mass spectrometry. Obviously, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे when we talk about analytical chemistry. Just for now, you need to understand one thing about mass spectrometry. This technique is basically used to find out the isotope, the abundance of different isotopes of an element. अभी जिस तरह हम देख रहे थे कि क्लोरीन 25 वाला जो है, क्लोरीन 35 वाला जो है, it exists. Um, it has a 75% abundance. I'm sorry. और जो आपका क्लोरीन 37 वाला आइसोटोप है, it has a 25% abundance, right? How did we know that? We knew that from this technique. तो एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर, उसमें हम सैंपल डाल देते हैं और वो हमें ग्राफ जनरेट करके दे देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं और हर आइसोटोप कितनी अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहा है, या आई थिंक उनकी अबंडेंस कितनी है। So let's look at those graphs. One of those graphs. Okay, so this is the graph that is generated by a mass spectrometer. इसको हम कहते हैं mass spectrum. The graph is known as mass spectrum. और जितनी peaks होती हैं उतने isotopes होते हैं। इसमें एक क्लोरीन का है। This is a mass spectrum of chlorine. So it has two peaks, which means chlorine has two isotopes. एक का mass है 35 और एक का mass है 37 और उनकी abundance ये लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको एक्चुअली क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि आपको ग्राफ दे दिया जाता है, देन दे आस्क यू टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आपने सिंपली क्या करना होता है, AR इज इक्वल टू यहाँ से अबंडेंस ली 75.76 मल्टीप्लाई बाय 35, वही जिस तरह से आपको वैल्यूज अब आपको ग्राफ से रीड करनी है। दिस जस्ट द डिफरेंस है कि वैल्यूज आपको ग्राफ से रीड करनी है, बाकी कैलकुलेशन पार्ट इज द सेम जो कि हमने पीछे किया है, राइट? तो आपको ग्राफ से रीड करनी आनी चाहिए वैल्यूज। So now we are going to move towards a very important topic in this chapter, and that is talking about electrons. So there are a few things that we learned in O levels as far as electrons are concerned, and one was that electrons move around the nucleus in fixed pathways. They do move around the nucleus, that is correct, but they do not move in fixed paths. Okay, because fixed path का मतलब ये है, let's say एक फ्रेंच फ्राइज वाला है, एक फ्रेंच फ्राइज तो नहीं कहना चाहिए, रेडी पर चिप्स बेचते हैं, ठीक है? तो हमें पता है कि यार वो रोज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो जब भी कोई चीज फिक्स पाथ से मूव करती है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन फिक्स पाथवेज, तो आप एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन को लोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस एजम्पशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ओके, so that's what I've written here, that electrons do not orbit the nucleus in fixed paths. और हाइजेनबर्ग रूल भी स्टेट कहता है that it is impossible to pinpoint the exact location of an electron. The maximum that you can do is you can specify a region where electrons are likely to be found. It's pretty much like अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं और मुझे किसी ने लोकेट करना है, ठीक है, तो आप मैक्सिमम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार चलो, अगर मुझे किसी ने लोकेट करना है तो वो क्या सोचेगा, वो कहेगा अच्छा मैं कौन सी कंट्री में रहता हूँ, फिर मैं कौन सी सिटी में रहता हूँ, अच्छा फिर मैं कौन से टाउन में रहता हूँ, कौन से एरिया में रहता हूँ, तो एरिया तक आप आ जाओगे। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन आप ये बता सकते हो अच्छा इस एरिया में डेफिनेटली। तो इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन्स को भी ना लोकेट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन्वेलप से, सबसे पहले आते हैं तीन, हमने अगर इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है ना, सबसे पहले हमें शेल्स में जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें सब शेल्स में जाना पड़ेगा जो कि शेल्स के अंदर होते हैं, और फिर हमें फाइनली जाना पड़ेगा ऑर्बिटल्स में जो कि सब शेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अब वही एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी कि मुझे लोकेट करना है आपने, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा कि मेरी कंट्री कौन सी है, मैं किस कंट्री में बैठा हूँ, पाकिस्तान में, इतना मुझे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन से शेल में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, कहाँ पे।
ठीक है, उसके बाद मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा अच्छा कंट्री के अंदर मैं कौन सी सिटी में हूँ, ठीक है, उसी तरह बिल्कुल उसी तरह शेल के अंदर कौन से सबशेल के अंदर है, राइट? उसके बाद ये फाइंड आउट करना पड़ेगा अच्छा एरिया कौन सा है, ठीक है, यानी कि सबशेल्स के अंदर भी ऑर्बिटल कौन सा है। तो यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स कहीं पड़े हैं, जैसे यहाँ पे आके मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू लोकेट इलेक्ट्रॉन्स, वी आर ट्राइंग टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास शेल्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले शेल्स की, ओके। So we studied in O levels that there are 4 shells और उनकी हमने कैपेसिटीज भी पढ़ी थी कि जो फर्स्ट शेल होता है it can take 2 electrons, the second shell can take 8 electrons, the third shell can take 18 electrons and the fourth shell can take 32 electrons. That's what we studied in O levels. तो जो फर्स्ट शेल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है एंड देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। अब शेल्स जो होते हैं इनको हम क्वांटम शेल्स भी कहते हैं और इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि हम इनको एनर्जी लेवल्स क्यों कहते हैं? दिस इज बिकॉज हर शेल की एक सेपरेट एनर्जी होती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब ये क्वेश्चन आता है आखिर किस शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? तो ऑफन स्टूडेंट्स से कि सर द शेल दैट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस व्हिच इज द शेल नंबर 1 is going to have the highest energy because it is closest to the nucleus, but this is not the case. अब न्यूक्लियस को आप इमेजिन करें कि न्यूक्लियस आपके कोई बहुत स्ट्रिक्ट अब्बा जी है, एक बहुत स्ट्रिक्ट अब्बा जी हैं और ये जो 4 शेल्स है ना ये आपके 4 सिबलिंग्स हैं, ठीक है। तो जो सिबलिंग जो आपका भाई या बहन सबसे क्लोज होगा अब्बा के, that person is going to feel the least amount of freedom and therefore it is going to have the least amount of energy। यानी कि जो आपका शेल नंबर 1 होगा it is going to have the least amount of energy, we'll say it will have the least amount of energy। और जो सिबलिंग आपका सबसे दूर होगा अब्बा जी से that is going to have the highest amount of energy। इसकी बेसिक लॉजिक सिंपली ये है कि न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से दैट शेल इज गोइंग टू फील द स्ट्रॉन्गेस्ट पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली उस पहला जो शेल होगा उसको सबसे ज्यादा पुल फील हो रहा होगा और फोर्थ को सबसे कम पुल फील हो रहा होगा। तो हमने शेल्स के बारे में समझ लिया कि शेल्स कितने होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर शेल के अंदर, उनकी अपनी कैपेसिटी हमने देख ली। तो अब हम शेल के अंदर चलते हैं, यानी कि हमने सबसे बड़ा बैग खोल लिया। इट्स प्रीटी मच लाइक कि 3 बैग्स हैं, तीसरे बैग के अंदर अंडे पड़े हुए हैं। तो आपने पहला बैग खोल लिया जो कि शेल का था। अब हम अंदर चल रहे हैं, अंदर वाले बैग पे जो कि क्या है? सब शेल्स। तो सब शेल्स को हम क्वांटम सब शेल्स भी कहते हैं और सब शेल्स भी कहते हैं, आपकी मर्जी है। 4 सब शेल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ, और सबकी अपनी अपनी कैपेसिटीज हैं। एस सबशेल कैन टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सबशेल कैन टेक मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सबशेल कैन मैक्सिमम टेक 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ सबशेल कैन मैक्सिमम टेक 14 इलेक्ट्रॉन्स। इससे ज्यादा एफ नहीं ले सकता, यही उनकी कैपेसिटीज है। अब हम हर शेल के हिसाब से उनमें सब शेल्स को प्लेस करते हैं, यानी कि हमारे पास कितने शेल्स थे? 4 शेल्स थे ना। तो फर्स्ट शेल, then you have second shell and you have third shell and the last one is your fourth shell। तो सबकी कैपेसिटीज हमें पता है। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की, सेकंड शेल की कैपेसिटी है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स की। I'm talking about shell here, remember। थर्ड शेल कैन टेक 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ शेल कैन टेक 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम एडजस्ट करते हैं सब शेल्स को इनके अंदर। तो पहले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही सब शेल आ सकता है जो कि है एस। सेकेंड शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो उसमें कौन कौन से सब शेल आएंगे? एस और पी। तो उसमें एक एस होगा और एक पी होगा। और जो थर्ड शेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो उसमें कौन कौन से सब शेल आ सकते हैं? 2 + 6 8 + 10 18। तो उसमें एक एस आ सकता है, एक पी आ सकता है और एक डी आ सकता है। और फोर्थ में 32 है तो सारे आ जाएंगे। अगर आप काउंट करो एस पी डी और एफ तो 32 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में होगा एक एस सब शेल, सेकेंड शेल में होगा एक एस सब शेल और एक पी सब शेल, थर्ड विल हैव 1 S 1 P and 1 D sub shell and the fourth one will have 1 S 1 P 1 D and 1 S 1 F sub shell। ओके,
और इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अच्छा कि एस सब शेल फर्स्ट शेल का है या सेकंड का है? हम ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि पी सब शेल सेकंड शेल का है या थर्ड शेल का है? वो उस हम इस तरह से करते हैं कि हम पीछे कोएफिशिएंट लगा देते हैं। लाइक एस के जितने भी सब अब फर्स्ट शेल के जो एस सब शेल है उसको हम 1s से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? क्योंकि एस फर्स्ट शेल का है तो 1s हो जाएगा। ये एस और पी सेकंड शेल के हैं तो हम इनको कहेंगे 2s और 2p। और ये जो एसपीडी हैं ये थर्ड शेल के हैं तो वी कॉल देम 3s 3p और 3d। और जो फोर्थ वाले हैं वी विल कॉल देम 4s 4p 4d एंड 4f। तो वो कॉफिशिएंट लग जाता है। जो कॉफिशिएंट होता है वो शेल का नंबर होता है। और लेट्स से मैं कह रहा हूँ 3d, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है d सब शेल है जो कि थर्ड शेल के अंदर है। अगर मैं कहता हूँ 2s, इसका मतलब है s सब शेल है जो कि सेकंड शेल के। आई होप यू गॉट इट। तो अब हमने बात कर ली सब शेल्स की, यानी कि हम शेल से अंदर सब शेल्स में चले गए, सिटी तक पहुंच गए। ठीक है, हमने बात कर ली कि शेल्स के अंदर कौन कौन से सब शेल्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटीज। सब शेल्स कौन कौन से हमारे पास? एस है, पी है, डी है और एफ है। अब हम चल रहे हैं सब शेल के भी अंदर, यानी कि हमारा आखिरी बैग जो कि क्या है? ऑर्बिटल, जिसके अंदर से आपको अंडे मिल जाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स। जब आप डॉट एंड क्रॉस बनाते थे ना, उसमें जो जो रिंग्स बनाते हो आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में, वो एक्चुअली ऑर्बिटल्स के होते हैं, क्योंकि दिस इज द प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। ये वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। दिस इज द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने भी होते हैं उनकी एक ही कैपेसिटी होती है जो होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन नॉट टेक, वन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन नॉट टेक मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने सबशेल्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एडजस्ट करना है। तो सबशेल्स हमारे पास कितने थे? एस, पी, डी और एफ। अब एस जो था हमारे पास, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे? 6। डी में आते थे 10 और एफ में आते थे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमने ऑर्बिटल्स को एडजस्ट करना है। अगर मुझे पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैन टेक ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एस में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे? एस कैन ओनली हैव 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट? इस तरह पी जो है कैन हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, पी में आ जाते हैं तो उसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे? वी विल हैव 3 atomic orbitals, right? And D will have 5 atomic orbitals and F will have 7 atomic orbitals, क्योंकि एक atomic orbital में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, इन सब का आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे शेप्स की, S और P की। आपको सिर्फ S और P की शेप पता होनी चाहिए AS तक। ठीक है, S ऑर्बिटल जितने भी होते हैं उनकी स्फेरिकल शेप होती है लाइक दिस। ठीक है, और जो आपके P ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप होती है डम्बल। ओके, सो एस, ये एस है, एस की शेप होती है स्फेरिकल। ओके, और जो पी होता है हमारा उसकी शेप होती है डम्बल। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम फोकस करते हैं एस और पी के ऊपर। डी और एफ जो है उनकी शेप्स एज सच हमसे पूछते नहीं है। डी ऑर्बिटल्स की शेप आएंगे आपके A2 में जाके, लेकिन वो दिल्ली अभी बहुत दूर है, उसमें टाइम है। तो लेट्स फोकस ऑन एस एंड पी। तो फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑर्बिटल्स कैसे एडजस्ट हुए हैं इन सारे सबशेल्स के अंदर। एस में 1 ऑर्बिटल होगा, पी में 3 होंगे, डी में 5 होंगे और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो एज वी टॉक्ड अबाउट, एस का एक ही ऑर्बिटल है और एस के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। एस ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल शेप का होगा, पी ऑर्बिटल हमेशा डम्बल शेप का होगा। नो मैटर कि वो किस शेल को बिलोंग करता है। ठीक है, चाहे वो पहले शेल में हो चाहे वो तीसरे शेल में हो, एस ऑर्बिटल की शेप यही रहेगी एंड सेम गोज फॉर पी ऑर्बिटल। अब एस का तो सिंपल है, एस के जो ऑर्बिटल्स हैं वी कॉल देम एस ऑर्बिटल्स, क्योंकि वो एक ही होता है, यानी कि एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल आता है, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ और उसमें एक ही ऑर्बिटल एडजस्ट हो सकता है, सो वी कैन सिंपली कॉल दैट ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल।
बट एज फार एज p ऑर्बिटल्स आर कंसर्न, p में 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, क्योंकि p कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है मैक्सिमम 6, तो कितने ऑर्बिटल आते हैं उसमें 3। अब तीनों ऑर्बिटल्स को p ऑर्बिटल नहीं कह सकते, देयर हैज टू बी अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, तो वो हम उसका रखते हैं ओरिएंटेशन के हिसाब से। जब आपका p ऑर्बिटल x के लॉन्ग होगा, ठीक है, वी कॉल दैट px। जब आपका ऑर्बिटल y के लॉन्ग होगा ओरिएंटेड, तो वी कॉल दैट py। और अगर z के राउंड ओरिएंटेड है, अगर z के राउंड ओरिएंटेड है तो उसको हम कहेंगे pz। तो बेसिकली p ऑर्बिटल्स को हमने ओरिएंटेशन की बेसिस पे 3 उसमें स्प्लिट कर दिया, px, py एंड pz। और ये बात याद रहे, x का मतलब ये नहीं है कि हॉरिजॉन्टल है, y का मतलब ये नहीं है कि वर्टिकल है, ठीक है। x, y और z दे कैन बी एनीथिंग। अगर आप 3 डायमेंशंस में, अगर आप इमेजिन करो कि आप स्पेस में हो, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कुछ नहीं है आपके, तो आपको नहीं पता कि x क्या है, y क्या है, z क्या है, आपको तो नहीं पता ना क्या हॉरिजॉन्टल है क्या वर्टिकल है, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट वो बस परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, एक्स, वाई और जी। तो इट इज हाईली पॉसिबल कि आपका एक्स लेट से ऐसे, यहाँ पे एक्स है और पी एक्स आपने बनाना है, तो आप ऐसे बना दो, जस्ट लेबल कर देना कि वो वाला आपका एक्सेस एक्स है, तो आप कहोगे अच्छा ये पी एक्स है। अगर आप इसको y कर दोगे तो ये पी वाई हो जाएगा, अगर आप इसी को z कर दोगे तो ये पी जेड हो जाएगा। ओके, सो s has only one orbital, we call it s orbitals। p के 3 होते हैं, we call them p, x, y and z। अब let's look at this diagram very carefully। देखो सबसे बाहर जो रिंग है ब्लू, दैट्स अ शेल, उसके अंदर 2 सब शेल्स हैं s और p। ये जो रेड रिंग है ये किसके हैं, सब शेल के। और उसके अंदर ये जो ब्लू बनाए हुए हैं उसने, वो क्या है, ऑर्बिटल्स। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि शेल कौन सा है, ये तो बड़ा सिंपल है ना, ये पीछे 2 लिखा हुआ है सब शेल्स के पीछे, तो पता लग जाएगा ये सेकंड शेल है। अब देखो इसको मैं अगर ब्रेक डाउन करूं तो शेल सेकंड है, ठीक है। सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 की कैपेसिटी होती है, तो उसमें एक एस सब शेल आता है और एक पी आता है, क्योंकि एस की कैपेसिटी 2 की होती है और पी की कैपेसिटी 6 की होती है। देखो एक एस आ गया सब शेल और एक पी सब शेल आ गया। उसके बाद एस के अंदर हमें पता है एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि स्फेरिकल होता है, वो आ गया। उसके बाद पी का हमें पता है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि 3 एक्सिस के अराउंड ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। ये आ गया पीजी, ये वाला जो है ये एक्स के अराउंड है तो इसको पी एक्स कह दो, और ये वाला वाई के अराउंड है इसको पी वाई कह दो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसको समराइज कर रहा है। बड़ा बैग इज द शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स। आई होप यू गॉट इट। तो हमने इनका रिप्रेजेंट कैसे करना है, अब देखो मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहना है कि सेकंड शेल का एस सब शेल, तो मैं कैसे कहूंगा उसको, मैं लिखूंगा 2s। मैं कहता हूं फोर्थ शेल का डी सब शेल, तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, 4d। मैं बोलता हूं आपको थर्ड शेल का एस सब शेल, चलो पी सब शेल, थर्ड शेल का पी सब शेल, तो मैं कैसे लिखूंगा 3p, ठीक है। अब मैंने इनकी कैपेसिटीज भी लिख दी है, मुझे पता है एस कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मैक्सिमम 2, तो मैंने ऊपर 2 लिख दिए। तो ये जो एक्सपोनेंट होता है दैट शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सबशेल। डी में कितने आते हैं मैक्सिमम, एसपीडी 2 6 10 10 आते हैं। पी में कितने आते हैं, 6 आते हैं। तो अब हम बेसिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने ओ लेवल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, अब हम उसको थोड़े डिटेल में लेके जाएंगे। बेसिक आइडिया वही है, पहले इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में जाते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी पे जाते हैं, फिर उससे हायर एनर्जी पे, फिर उससे हायर एनर्जी पे। ऐसे ही होता था ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती थी, या 9 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सो द फर्स्ट शेल विल टेक 2 एंड द रेस्ट ऑफ द 7 विल गो टू द सेकंड शेल। व्हाई, बिकॉज फर्स्ट शेल की एनर्जी कम होती है, सेकंड की ज्यादा होती है, उससे पहले फर्स्ट शेल फिल होगा, फिर सेकंड फिल होगा। इस प्रिंसिपल को बेसिकली हम कहते हैं द ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। ओके, और ये बात यहाँ पे क्लियर रहे
कि लेट से मेरे पास एक सबशेल है 2s और एक है मेरे पास 1s। तो 2s में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर एनर्जी पे होंगे एज कंपेयर टू 1s, क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड शेल इज एट अ हायर एनर्जी। तो जब एक शेल हायर एनर्जी पे चला जाता है तो उसके सबशेल्स भी हायर एनर्जी पे चले जाते हैं और ऑर्बिटल्स भी हायर एनर्जी पे चले जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव सम फन। हम शेल जो सबशेल्स को फिल करते हैं, सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट शेल, राइट, उसके बाद मेरे पास आएगा सेकंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फिर आएगा मेरे पास थर्ड और फिर आएगा मेरे पास फोर्थ। तो पहले शेल में दो सब शेल्स होते हैं एस, नहीं पहले शेल में एक सब शेल होता है एस, तो लिख लिया 1s। दूसरे शेल में दो सब शेल्स होते हैं, एक होता है 2s, एक होता है s और एक होता है p, तो हम उसको कहेंगे 2s और 2p। और थर्ड शेल में तीन सब शेल्स होते हैं s, p और d, तो वी विल कॉल देम 3s, 3p एंड 3d। और फोर्थ शेल में चार सब शेल्स होते हैं, तो वी विल कॉल देम 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने चार इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, चार इलेक्ट्रॉन्स को मैंने फिल करना है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? एक एलिमेंट है, एक एटम है, एक एलिमेंट है जिसके चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। 1s की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये आ गया 1s2। रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? अगली जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी, जो कि 2s है। फर्स्ट शेल से दूसरे शेल में गए, दूसरे शेल से उस सब शेल में जाएंगे जिसकी लोअर एनर्जी है, विच इज s। उसके बाद फिर p में जाएंगे, ठीक है। अब रिमेनिंग दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? p में, सॉरी 2s में, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2। अब लेट से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले दो इलेक्ट्रॉन्स गए 1s में, 1s2। अगले तीन इलेक्ट्रॉन्स गए 2s में, 2s की कैपेसिटी सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स की है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स तो ले लेगा, तो एक बचेगा, वो कहाँ भेजेगा? आगे 2p में। 2p विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब लेट से मैंने करनी है 9 इलेक्ट्रॉन्स की, तो चलो 10 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन 1s में जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन 2s में गए, s की कैपेसिटी दो इलेक्ट्रॉन्स की है, तो 2s2 आ जाएगा। रिमेनिंग 6 जो है वो किस में जाएंगे? 2p में। p की कैपेसिटी कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की, तो सारे के सारे p में एडजस्ट हो जाएंगे, तो ये होगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सही है। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ी स्पेस बना लूं। चलो राइट पे कर लेंगे, इट्स ओके। अच्छा, अब हम करते हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं। लेट्स डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन्स, 15, ओके। तो अगेन 1s2, 2s2, तो बाकी p में गए। अब कितने p में जा रहे हैं? 4 तो इनमें आ गए, 9 p में जा रहे हैं। p की कैपेसिटी सिर्फ 6 की है, तो उसने 6 ले लिए। अब कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कहाँ जाएंगे? थर्ड शेल के अंदर। थर्ड शेल में भी कहाँ पे जाएंगे? 3s में। 3s की कैपेसिटी, s की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो वो उसने ले लिए। अब कितने बच गए? 2 4 6 10 और 2 12, 15 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब अगले तीन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? p में, तो 3p के ऊपर क्या आएगा? 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब लेट से, ओहो, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स तक। तो पहले 1s से जा रहे हैं, 1s से 2s में जा रहे हैं, 2s से 2p में जा रहे हैं, 2p से 3s, 3s से 3p। यहां तक यही फॉलो हो रहा है, लोअर से हायर एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ओके। अच्छा, अब लेट से मैं इलेक्ट्रॉन्स लेता हूं 18, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एक दफा फिर शुरू से लेके चल रहा हूं।
सबसे पहले 1s फिल होगा, 1s में सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। फिर 2s फिल होगा, 2s में भी सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। फिर आगे जाएगा 2p में, 2p में सिर्फ 6 आ सकते हैं। फिर आगे जाएगा 3s में, 3s में भी 2 आ सकते हैं बस। 4 6 10 2 12 और उसके बाद p में जाएगा, इसमें पूरे 6 आ सकते हैं। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ तक मेक श्योर दैट इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। खुद भी करने की कोशिश करो, हो जाएगा। ओके, नाउ 18 इलेक्ट्रॉन्स के बाद में कहानी कुछ बदल जाती है। So we have done till 18 electrons, like 2 to 4 6 10 to 12 and 6 18 until 3p it's pretty straightforward. Electronic configuration करने में कोई problem नहीं. After 3p there is a bit of a pattern break. The pattern breaks. The thing is that when you move from first to second shell, the energy difference is great. Like पहले और दूसरे energy level में, sorry, energy let's say मैं assume करता हूँ 100 का डिफरेंस है एनर्जी का, लेकिन जब सेकंड से थर्ड में जाता है तो एनर्जी का डिफरेंस 30 रह जाता है, और थर्ड से फोर्थ में जाता है तो ऑब्वियसली एनर्जी डिफरेंस एज सच रह नहीं जाता। तो एज अ रिजल्ट तीसरे शेल के सब शेल्स और फोर्थ शेल के सब शेल्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं, यानी कि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, ऑल्दो 4s की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए बिकॉज इट्स इन द फोर्थ शेल, राइट। तो 3p से 3d में जाना चाहिए ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि होना ही चाहिए, लेट्स से अगर मेरे पास 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो होना ये चाहिए था कि पहले 1s2 2s2 2p6 उसके बाद 3s2 और 3p6, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। होना ये चाहिए था कि इसके बाद d में चला जाए 3d1, राइट। दैट वुड हैव बीन द एक्यूरेट थिंग कि थर्ड के पहले s में फिर p में और फिर d में चला जाए, बट ऐसा होता नहीं है, 3d में नहीं जाता, इंस्टेड किस में जाता है, इंस्टेड जाता है 4s में। क्यों? क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम है, तो 4s में पहले जाता है फिर 3d में जाता है और उसके बाद वापस ये 4p में जाता है। लेट्स डू अ फ्यू एग्जांपल्स। रिपीटिंग अगेन, 18 इलेक्ट्रॉन्स तक क्या हो रहा था, 1s से 2s, 2s से 2p, 2p से 3s, 3s से 3p। अब 3p से 3d में जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, 3p से पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं 4s में, यानी कि अगर मुझे 20 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो होगी 1s2 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6। अब जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे 4s में, इट विल बी 4s2। ओके, जब 4s फिल हो जाएगा ना फिर ये वापस 3d में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर मैंने 22 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं तो फिर क्या होगा, 3p6 तक मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 3p6 तक तो वैसे ही चलेगा, राइट। उसके बाद आएगा 4s2 और फिर आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 रह गए, फिर आएंगे 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स। 3p6 तक 18 हो गए थे, उसके बाद 4s2 20 और फिर बाकी के 3d में जाएंगे, यानी कि पहले 4s फिल होगा और फिर 3d फिल होगा। ठीक है, चलो और करते हैं, और एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स डू 28 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक ट्राई टू डू इट विद मी। ओके, मैं पूरा लिखता हूँ, पूरा लिखता हूँ, फिल हेल्प। तो 1s, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। उसके बाद 4s ने फिल होने, तो 4s2, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 8, वो फिर 3d में जाएंगे, 3d 8। अब सीन ये है, अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन जिससे ये होती है, अब फिल तो पहले 4s हो रहा होता है डेफिनेटली, 3d बाद में फिल होता है, लेकिन जस्ट फॉर सीक्वेंस टेक, जस्ट फॉर सीक्वेंस के लिए आप 3p के बाद वैसे जब लिख इस तरह से फिल कर लो, लेकिन जब आप लिखोगे ना तो 3p6 के बाद फिर 3d8 लिखोगे और फिर 4s2 लिखोगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप 3d पहले लिखोगे, क्योंकि एक एक सीक्वेंस इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अल्फाबेटिकली समझ लो या जो भी एक लॉजिकल सीक्वेंस से बन रहा है, बट फिल पहले 4s होगा। ओके, 4s, उसके बाद 3d, 3d के बाद फिर वापस 4p में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। चलो एक वो भी करते हैं। तो मैंने 32 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो 1s2
2s2 2p6, फिर थर्ड शेल में एंटर हो गए 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पे वो कहानी शुरू हो जाती है, होना ये चाहिए जो होना, अब होगा क्या, 4s में फिल होगा पहले इलेक्ट्रॉन, फिर 4s में होगा, उसके बाद फिर 3d में जाएंगे, कितने रह जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स, 3d में सिर्फ 10 ही जाएंगे, तो ये 3d 10 होंगे, और फिर क्या आएगा आपका 4p2। ठीक है, तो पहले 3p से 4s में जाएगा, फिर 4s से वापस 3d में आएगा, फिर 4p में जाएगा, ये आपको याद रखना है। 3p के बाद जाना चाहिए था 3d में, बट जाएगा 4s में, 4s के बाद फिर 3d में जाएगा। ठीक है, अब थर्ड शेल पूरा हो गया था, तो फोर्थ का नेक्स्ट क्या बनता है 4p, तो उसमें जाएगा। लेकिन आपने इसका सीक्वेंस ये नहीं रखना, आपने सीक्वेंस क्या रखना है 3d 10 4s2 और फिर 4p2। ओके जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये दो और एक्सेप्शंस हैं, आई होप पीछे वाला अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, तब आगे मूव करना। पीछे वाला पहले अच्छे से समझना, फिर आगे मूव करना, वरना इट विल गेट कंफ्यूजिंग। अब दो फर्दर एक्सेप्शंस हैं, और वो क्या है, क्रोमियम और कॉपर। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 पूरे हो गए। उसके बाद 4s में जाएगा और फिर 3d में जाएगा, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और फिर कितने बचेंगे 3d में 4 जाएंगे। ठीक है, तो 3d 4 है 4s 2 है, 3d पहले लिखेंगे और 4s बाद में लिखेंगे, होना ये चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का प्रॉब्लम ये है कि इनके पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, पार्शियली दे हैव पार्शियली फिल्ड 4s ऑर्बिटल कर लो या शेल कर लो, इनका ये पार्शियली फिल्ड होता है, यानी कि 4s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसके लिए एक्चुअली में जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी 3d5 और 4s1। सिमिलर इज द केस विद कॉपर। कॉपर में क्या होना चाहिए था 1s2, फिर सेकंड शेल में एंटर हुए 2s2 2p6, फिर थर्ड शेल में एंटर हुए 3s2 3p6, 18 हो गए। अब जाना चाहिए था किसमें 4s2 में जाएगा, फिर 3d में जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो पहले मैं लिख लेता हूँ 4s2 3d में कितने जाएंगे 20 और 9 जाएंगे ना 3d में, इसको मैं अरेंज कर लूँ, 3d में 9 जाएंगे और 4s में 2 जाएंगे। लेकिन अब इन दोनों का मसला क्या है, ये इनका 4s ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है, यानी कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता है, जिस तरह क्रोमियम में हुआ था वैसे ही कॉपर में होगा, 4s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 4s में 2 की जगह एक इलेक्ट्रॉन होगा, और 3d में 9 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये थे हमारी फिलिंग। अब हम लास्ट चलते हैं ऑर्बिटल्स की तरफ, ऑर्बिटल की फिलिंग की तरफ। अच्छा, यहाँ पे बॉक्सेस का मतलब क्या है, बॉक्सेस का मतलब ऑर्बिटल है। एस में एक ऑर्बिटल होता है तो एक बॉक्स है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 3 बॉक्सेस हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 5 बॉक्सेस हैं। तो बेसिकली वो फिल किए हुए हैं और कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स। ओके, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। लेट्स से मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो बनती है 1s2 और 2s2। तो मैंने उसके ऑर्बिटल्स की फिलिंग करनी है, तो कैसे करूंगा 1s2 इन 2s2, ऑपोजिट साइडेड एरोज आप यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए। ठीक है, और लेट्स से मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स की करनी है, चलो मैं डायरेक्ट अब एलिमेंट ही लेता हूँ, बेहतर है, नाइट्रोजन लेता हूँ। वो मुझे कहता है अच्छा इसके ऑर्बिटल्स की फिलिंग करनी है, कैसे करूंगा, पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो 1s2 2s2 और 2p। तो p में p के 3 इलेक्ट्रॉन, p के कितने ऑर्बिटल्स होंगे 3 बॉक्सेस बनेंगे ना, राइट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं मुझे 2 4 5 6 7। अब एक तरीका है कि आप ये करो 5 6 और 7, दिस इज नॉट द वे। इस तरह से हम फिलिंग नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स की। हम फिलिंग कैसे करते हैं, हम देखो बिल्कुल वैसे ही, जिस तरह अगर आप बस में जाओ तो आप उस तरफ बैठते हो जहां पे आपके साथ कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, यू विल ऑलवेज प्रेफर अ सीट जहां पे आपके एडजेसेंट सीट पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही करते हैं, तो वो इमीडिएटली एक ऑर्बिटल को फॉरन फिल नहीं कर देते, वो इस तरह से करते हैं 1 2 3 4, 7 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने थे, तो 5 6 एंड 7। ओके, अब जब 8वां इलेक्ट्रॉन अगर आना होगा तो फिर दूसरे एक ऑर्बिटल पूरा फिल होगा, दे प्रेफर कि वो पार्शियली फिल्ड। ठीक है,
अब लेट्स से ऑक्सीजन करता हूं मैं, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बाकी सब तो सेम रहेगा, सिर्फ ये जो 2p है 2p3 की जगह ये 2p4 हो जाएगा, राइट। उस केस में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये आएगा 8। ओके, तो दैट्स हाउ यू फिल ऑर्बिटल्स। ये वही कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें मैंने आपको बताया, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके ऑर्बिटल्स की फिलिंग भी आपको आनी चाहिए कि वो कैसे करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी 1s2 2s2 और 2p1। अब देखो इसमें एक ही p का एक, अब s के ऑर्बिटल्स ऐसे बनाने नहीं होते, एक ही तो होता है, नॉर्मली p में ही होते हैं जो आपको मजा आता है फिल करने का। अब p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, x y और z, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही है तो मैक्सिमम एक ही ऑर्बिटल आपका पार्शियली फिल्ड रहेगा, बाकी तो टोटली अनफिल्ड रहेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मैंने करवा दिया। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हियर इज आयनाइजेशन एनर्जी। ये टॉपिक जो है वो सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं है, ये टॉपिक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी है। तो व्हेन वी डू आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई एम गोइंग टू रिलेट टू दिस एंड उस टाइम पे फिर हम लोग इसको जल्दी से कर लेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इन सिंपल टर्म इज एनर्जी, इट इज द एनर्जी required to remove electron। ठीक है, एक बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब अगर एक एटम है, इफ इट हैज 15 इलेक्ट्रॉन्स सो इट विल हैव 15 आयनाइजेशन एनर्जीज। हर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी। डू नॉट कंफ्यूज इट विद द फैक्ट कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स आराम से खुद ही दे देते हैं, ये उस एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं चाहे एटम चाहे या नहीं चाहे, अगर हमें उसका इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी दैट विल बी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड सो ऑन, दिस गोज ऑन। सो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from each atom in 1 mole of gaseous element to form 1 mole of gaseous ion. To be more precise, energy required to remove an electron from a gaseous atom to form a gaseous ion. This is a 3-mark definition. Energy required to remove an electron, carry 1 mark. ठीक है, from a gaseous atom, second mark, to form a gaseous ion, third mark. तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आयन बन जाता है। x में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो x+1 और साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट विल बी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच आई फर्स्ट से, कि फर्स्ट आयनाइजेशन है। जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसमें आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, तो अब आप एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर रहे, आप आयन से कर रहे हो। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम आयन टू प्रोड्यूस अ मोर पॉजिटिव आयन। तो यू हैव x+1 आयन, तो आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया, इट विल फॉर्म x+2 एंड साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही होगी दैट विल बी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे I2 से। इसी तरह हमारी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, उसमें आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे एक एटम में से, तो इट विल फॉर्म x+2 से x+3 बन जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नाउ देयर वेरियस फैक्टर्स जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, अब हम एक एक करके वो डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज होता है जो कि चार्ज न्यूक्लियस पे है, दैट इज ड्यू टू प्रोटॉन्स। ओके, तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रांगली न्यूक्लियस विल बी पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स। जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा होगा न्यूक्लियस, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना मुश्किल होता जा रहा होगा। तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, greater the nuclear charge, greater will be the ionization energy. उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है दैट इज नोन एज द शील्डिंग इफेक्ट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब हम बात करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की, तो वी जस्ट टॉक अबाउट के न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद एन अट्रैक्टिव फोर्स। व्हाट वी डोंट टॉक अबाउट इज द रिपल्शन फोर्स जो कि इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स की आपस में होती है। तो जो आपके इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी आपस में एक रिपल्सिव फोर्स भी होती है।
ठीक है, जिससे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स तो होती है आउटर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान, बट देयर इज आल्सो रिपल्शन फोर्स। तो ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको दो फोर्सेस फील कर रही होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली फीलिंग द फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस माइनस रिपल्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको टोटल अट्रैक्शन न्यूक्लियस की फील नहीं होती, क्योंकि कुछ नलिफाई हो जाती है इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। So in a way, if you see, so these inner shell electrons are actually shielding these outer electrons from feeling the full force of the nucleus. I'll say it again, that the inner shell electrons, the repulsion of the inner shell electrons, is shielding the outer electrons from feeling the full force of the nucleus. This effect is known as the shielding effect. तो shielding effect जैसे ही increase होता है, as you increase the shielding effect, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इट मींस के आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का चार्ज कम फील हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। द थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज एटॉमिक रेडियस, AR। और एटॉमिक रेडियस का सीन ये है कि एटॉमिक रेडियस जैसे कम होगा, एटॉमिक रेडियस कम होने का मतलब है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे। जैसे वो कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स करीब आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है जब एटॉमिक रेडियस कम होता है। इसी तरह से जब एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। उसकी रीजन ये है कि जब एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से, तो उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम फील हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना आसान हो जाता है। सो देयर इज लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आपको इनके ट्रेंड्स का भी आइडिया होना चाहिए। एटॉमिक रेडियस का, एटॉमिक रेडियस यू शुड नो, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। व्हाई? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, प्रोटॉन नंबर बढ़ता है अक्रॉस द पीरियड। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा होता है प्रोटॉन नंबर, जिस वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की तरफ पुल बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स करीब आते जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ। तो जब वो करीब आते हैं तो साइज, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है। ठीक है, और इसी तरह से एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है डाउन द ग्रुप? आपको पता है, जब आप ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। अगर आप ग्रुप लें, ग्रुप 1 लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लिथियम में 2 शेल हैं, सोडियम में 3 शेल हैं, पोटेशियम में 4 शेल्स हैं। तो बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। एंड नॉट ओनली शेल्स, जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो इन दोनों वजह से आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता है। शेल बढ़ने से तो बहुत कॉमन सेंसिकल है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने का मतलब ये है कि रिपल्शन ज्यादा हो रही है। रिपल्शन ज्यादा हो रही है तभी तो वो शील्ड कर रहा है ना। रिपल्शन इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होगी तभी तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितनी रिपल्शन ज्यादा होती है उतना आउटर इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है डाउन द ग्रुप। ओके, सो दिस स्लाइड इज रियली इंपॉर्टेंट, इनके हम डिस्कस करें लिंकेजेस। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे हमने डिस्कस किया इन अ ग्रुप, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लाइक आई टोल्ड यू, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है टॉप टू बॉटम क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। जबकि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट और राइट डिक्रीज होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और उस बढ़ने की वजह से वो पुल कर रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, तो साइज छोटा हो रहा है। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट वो कह रहा है सेम रहता है। शील्डिंग इफेक्ट क्यों सेम रहता है? शील्डिंग इफेक्ट इस वजह से सेम रहता है क्योंकि इनर्शियल इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। व्हेन यू आर मूविंग अक्रॉस द पीरियड, यू आर बेसिकली मूविंग अक्रॉस द सेम नंबर ऑफ शेल्स। अगर आप पीरियड 2 में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उस पीरियड में सब एलिमेंट्स जो होंगे उनके 2 शेल्स होंगे। तो जब शेल सेम है तो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा? अब एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड अगर कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड बढ़ेगी।
और एटॉमिक रेडियस अगर डाउन द ग्रुप डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी. तो आयनाइजेशन एनर्जी will increase from left to right in a period because atomic size is decreasing, and decreases from top to bottom in a group because atomic size is increasing. Okay, so we talked about कि general trend क्या है across the period, increase होती है ना ionization energy. लेकिन अगर आप यहाँ देखो, यहाँ दो anomalies हैं. एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम है जबकि ज्यादा होनी चाहिए. इसी तरह सल्फर की फॉस्फोरस से कम है हालांकि ज्यादा होनी चाहिए. अब उसकी रीजन क्या है वो देख लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है. तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नीशियम को और एल्यूमिनियम को. तो मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्यूमिनियम के 13 होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2. इसमें बाकी सब तो सेम रहेगा. एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 3s2 के बाद उसमें 3p1 आ जाएगा, राइट, एल्यूमिनियम में. अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3s में है जबकि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3p में है. तो 3p में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता है क्योंकि p इज फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू s. p थोड़ी हायर एनर्जी पे होता है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है एज कंपेयर टू s. तो p से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, इस वजह से एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है और मैग्नीशियम की ज्यादा है. अब इसी तरह फास्फोरस और सल्फर का भी देखते हैं. तो फास्फोरस के पास 15 होते हैं इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास 16 होते हैं. लेट्स डू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, देन यू हैव 3s2 और ये होगा 3p3. और डिफरेंस बस ये होगा कि ये 3p4 होगा. सल्फर एक इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा है ना. तो है तो अब ये दोनों 3p में. अब आगे कहानी क्या है, अगर मैं ऑर्बिटल्स के लेवल पे चेक करूं तो इसमें तो 1, 2 और 3. फास्फोरस में तो इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हुए होंगे, लेकिन जो आपका सल्फर होगा उसमें एक ऑर्बिटल आपका फुली फिल्ड होगा, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4. तो अब होता यह है कि जब आपका एक ऑर्बिटल फुली फिल हो जाता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ जाते हैं तो उनकी होती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाएगा. दैट्स व्हाई सल्फर हैज अ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू फास्फोरस. दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अक्सर फास्फोरस में पूछे जाते हैं. जो हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिकल्स करेंगे यू विल सी के ये क्वेश्चन आएंगे. Okay, so let's talk about successive ionization energies. So like I told you कि जितने एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं. So I'm taking phosphorus as an example here. Okay, phosphorus has 15 electrons, so it has 15 ionization energy as you can see. And if you see a trend here, तो you will see कि ionization energies are increasing. Second first से ज्यादा है, third second से ज्यादा है, fourth third से ज्यादा है. They keep on increasing. और ये इंक्रीज भी दो तरह के हैं. एक इंक्रीज है ग्रेजुअल जो कि आपने नोटिस किया होगा, और एक इंक्रीज है सडन. ओके, अब ये दोनों को हमें अंडरस्टैंड करना है. जो ग्रेजुअल है वो तो बहुत क्लियर है. अब सडन देखो, फिफ्थ और सिक्स में सडन इंक्रीज आ रहा है, 13th और 14th में सडन इंक्रीज आ रहा है. अब इसको फिगर आउट करते हैं. सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. अब लेट्स से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं मैं. मेरा इलेक्ट्रॉन था, मैंने रिमूव किया पहला इलेक्ट्रॉन. आई रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हियर, राइट. पहले 15 प्रोटॉन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे एंड आई रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन. ये आ गई मेरी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. एंड देन I removed the second electron. When I was removing the second electron, तब 15 protons 14 electrons को pull कर रहे थे. तो obviously इस केस में ज्यादा फोर्स होगी, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा मुश्किल होगा. तो सेकंड ionization energy would be greater than first ionization energy. And then when we are removing third electron, so basically 15 protons are now pulling 13 electrons. So now the third ionization energy is going to be greater than both second and first ionization energy. And this goes on till the fifth electron. You have removed 5 electrons. Now you need to remove sixth electron. अब जब छठा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, दैट इज फ्रॉम द इनर शेल. तो देयर विल बी अ सडन इंक्रीज इन एनर्जी. यहाँ पे बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आपको चाहिए होगी बिकॉज यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इनर शेल व्हिच इज मच क्लोजर टू द न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई इफ यू सी there is a big jump between fifth and sixth ionization energy because the sixth electron is being removed from the inner shell. और अब इसी तरह से ये सारे रिमूव होंगे. उसके बाद व्हेन यू आर मूविंग इनटू द लास्ट शेल, जब आपने 14th इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है यानी कि ये वाला, तो अगेन यू आर जंपिंग शेल्स. दैट्स व्हाई देयर इज अ सडन जंप. So you need to realize that the sudden jumps is because electrons are being removed from an inner shell.
और ये जो जंप्स होते हैं ना, सडन जंप्स, इनसे हमें एक और चीज पता चलती है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये पता चलती है जब फॉर एग्जाम्पल मुझे एक एलिमेंट दिया था, उसमें फिफ्थ और सिक्स में जंप था, फिफ्थ और सिक्स आयनाइजेशन एनर्जी में जंप था, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अच्छा आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन से छठा इलेक्ट्रॉन अंदर से निकाल रहे हैं, इसका मतलब है आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन से, सो दैट एलिमेंट हैज टू बी इन ग्रुप 5, राइट। ओ लेवल्स के हिसाब से बात करूं तो एलिमेंट को ग्रुप 5 में होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह लेट से अगर 8th और 9th में जंप आ रहा है, अगर 9th की आयनाइजेशन एनर्जी सडनली ज्यादा होगी, इसका मतलब है, या चलो 7th और 8th में करते हैं कि जब 8वां इलेक्ट्रॉन रिमूव करने लगे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है, इसका मतलब है आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसका मतलब है वो एलिमेंट ग्रुप 7 में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से ये भी हमें आइडिया हो जाता है। आगे चलते हैं। Okay, so that is the end of our chapter. So just to summarize, essentials में summarize कर देता हूँ. So what are the essentials of this chapter, जो कि आपने नई चीजें पढ़ी हैं थोड़ी सी. एक relative atomic mass की calculation you have done in O levels. Now you need to understand how to do it from A levels perspective, as in के mass spectrum अगर आपको graph दिया हुआ है, how do you read abundance and atomic mass from there. And when we do the questions, you will realize कि difficulty level थोड़ा सा बढ़ गया as far as calculating relative atomic mass is concerned. After that, we moved on to filling shells, subshells, and the orbitals. वो concept अच्छे से ले लेना. इंशाल्लाह topicals करेंगे तो it will get easier for you guys. After that, we went on to ionization energy. The factors that affect ionization energy, you need to understand that properly, and how does that relate to moving down the group and moving across the period. And the lastly we did successive ionization energy, that there are two kind of jumps, sudden jumps and gradual jumps in energy. So that helps you in a lot of things. उसका पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे आपको help करेगा. Anyway, we are going to see each other in the next video. We will do topicals related to all the concepts we talked about in this chapter. Hopefully this will turn out well for you all. Until then, Allah Hafiz.